Good afternoon, everyone. Today we will discuss detailed design in system analysis and design. Detailed design, this is the one phase of SDLC life cycle, that is system development life cycle. Means whenever you are going to make any project or system, you have to go through many phases from requirement analysis to testing, coding and maintenance. And this detailed design is one of the phase of SDLC life cycle. Suppose that you are going to build a system. When you start that, you have to make a system. Then first of all you will think about that कि मतलब वो system किस तरह का लगना चाहिए. First of all you make a logic of that. Then you physically implement the system. This is one is the detailed design that you think कि आपका प्रोजेक्ट जो सिस्टम है वो किस तरह का दिखना चाहिए, किस तरह का लगना चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल you make a simple logical design of the final system. Then you see what are the drawbacks of that system, what will be any requirement that is needed to modify the system. First of all you simply think of that, you make any diagram, data flow diagram or ER diagram or any block diagram to before implementing any system. This is the logical design, and after that you physically implement the system. That is called as physical design. Means that in detailed design you think of two topics, one is the logical design and one is the physical design. Everybody does this when he or she performs any system. Suppose that I told you to make any project, then you make a rough diagram of that system from which you have to start and at where you have to end. आपको कहाँ से शुरू होना है और कहाँ पे उसको ख़त्म करना है और बीच में आपने कौन से phases से होके जाना है. Then you make the diagram of that, and after that you make the final implementation of that project by following these all phases. So this is the detailed design. Detailed design means you think of that and you after thinking of that after maintaining the logics of that system you physically implement the system. So today we will discuss all these concepts, that from where we have to start and at where we have to end in design phase of system analysis and design. Now introduction about that. Effective system analysis and design can ensure that developers means correctly define the business problem. Means that whenever you are going to implement any system you have to first of all define the problems that you have to solve. Means कि जो आपको किसी ने कहा है कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाना है, ये सिस्टम बनाना है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आपको वो प्रोजेक्ट और सिस्टम बनाना है. Then design the appropriate solution according to the problems or the requirements of the users. You have to design the system. So design the appropriate solution is depends totally upon the developer, that how many phases from which he goes through to implement that system only. Is it clear what is a detailed design? Now system design consideration having three main parts. One is user consideration, one is data consideration and one is architecture consideration. From these three names you must be aware of that user consideration क्या होता है, data consideration क्या होता है, and architecture consideration. User consideration means by default it is recommended that depends upon the user who will use your project that you have implemented. Now कंसीडर पॉइंट्स वेयर यूज़र इंटरेक्ट विद द सिस्टम. अब आपने कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है, यू विल ऑब्वियसली सी दैट कि कोई यूज़र अगर उसको यूज़ करता है तो वो उसको कैसे इंटरेक्ट करेगा, वो कैसा दिखना चाहिए, आपका सिस्टम जो आप बना रहे हो उसकी विजुअलिटी कैसी होनी चाहिए. देन एंटिसिपेट फ्यूचर यूज़र सिस्टम एंड ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स. आफ्टर दैट कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बना दिया है, कोई सिस्टम बना दिया है, then there should be any flexibility that in future you can modify the system, you can update the system according to the demands if they are changing. इज़ इट क्लियर व्हाट कैन बी द यूज़र कंसिडरेशन. अगर हम कहीं पे जाते हैं, कुछ परचेज़ करने के लिए जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वो हमारे लिए यूज़र फ्रेंडली है या नहीं है. सेकेंडली अगर हमने उसमें कुछ मॉडिफाई करना है इन फ्यूचर, अगर कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है तो क्या हम उसमें कर सकते हैं, हम यही चीज़ें देखते हैं. सो अगर हमने कोई प्रोजेक्ट को बनाना है तो हमने यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना है कि उसकी रिक्वायरमेंट आगे आके चेंज भी हो सकती हैं. इज़ इट क्लियर? When you design any system, first of all you have to pay consideration on user part only
कि यूज़र तुम लोगों से चाहता क्या है, यूज़र के कैसे सिस्टम की डिमांड कर रहा है. नेक्स्ट इज़ द डेटा कंसिडरेशन. Now, what is data consideration? Enter data where and when it occurs. Obviously, this is the main part, or we can say that it is the coding part, where you code your system, where you have implementing some inputs, you are giving some input to your project. वो data input कैसी होनी चाहिए, किस तरह की होनी चाहिए, वैलिड डाटा होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, एंट्री के मेथड्स क्या होने चाहिए, आगे उसको एक्सेस करने के मेथड्स क्या होने चाहिए. इज इट क्लियर? Data consideration is the main part of the developer. This is the user part, this is the developer part. Enter data where and when it occurs. Verify data where it is input. Means that जब आपने डाटा इनपुट किया उसी टाइम पे ही डाटा की कहीं आपने चेकिंग लगाई हुई होनी चाहिए ताकि वो चेक कर दे कि आपने वैलिड डाटा एंटर किया है या नहीं किया है. सपोज यू गो टू ATM, आपने अपना पिन कोड भरा, वो अगर रॉन्ग एंट्री करते हो तो इट गिव यू एन एरर मैसेज कि आपने सही एंटर नहीं किया है. सिमिलरली दिस इज द पार्ट, वेरीफाई डेटा वेयर इट इज इनपुट. जैसे ही आपका डेटा इनपुट होता है इट शुड बी वेरीफाइड दैट इफ इट इज करेक्ट और नॉट. देन use automated data entry method whenever possible. Automated means that are automatic methods. Control access for data entry. Data entry के लिए control access होनी चाहिए. Report every instances of entry and change of data. This is also must. Then enter data only once. Is it clear? Means that these are the consideration parts that can be implemented. अगर user या developer कुछ चाहता है उसके accordingly we can change also. तो this all depends upon the designing phase that you think that which type of data should be entered at the time of designing phase. Now the architecture consideration. Use a modular design. Modular means suppose that you make a large design and it will be very complicated to understand. So go through modules, make some 5, 10, 20 different modules so that क्योंकि उनको समझना भी आसान हो जाए. Small modules होंगे, उन पे काम करना भी easy होगा और you can इंक्रीज द मैन पावर ऑल्सो कि आप कितने सारे बंदों को एक प्रोजेक्ट पे लगाने की बजाय आप 5 अलग अलग मॉड्यूल्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो. सो दिस इज यूज ए मॉड्यूलर डिज़ाइन. देन डिज़ाइन इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स मीन्स दैट कि एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं करना चाहिए. अगर ये डिपेंडेंसी आ जाती है देन मीन्स कि वन इज़ डिपेंडिंग अपॉन अनदर. जब तक वो अपना काम फिनिश नहीं करेगा तो आपका भी ख़त्म नहीं हो पाएगा. सो डिज़ाइन इंडिपेंडेंट मॉड्यूल्स दैट परफॉर्म ए सिंगल फंक्शन. So these are the main consideration parts that are to be considered at the designing phase. We are only here designing, that is logical and physical designing. Now logical system design means you can make data flow diagrams. I have already told you that. Logical means you are simply thinking of that कि what आपको करना क्या है. ओके आप उसके अकॉर्डिंगली कुछ डायग्राम्स बना रहे हो कि मुझे ऐसा कुछ सिस्टम बनाना है, उसमें मैंने ये करना है. तो वो सिस्टम बनाने के लिए यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डेटा फ्लो डायग्राम्स. मीन्स दैट तुम्हारा डाटा कैसे फ्लो करना चाहिए, कहाँ से शुरू होना चाहिए, कहाँ से एंड होना चाहिए, तुम्हारे यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बीच में आपने करना क्या है और एंड में क्या आना चाहिए. दैट इज़ डेटा डिक्शनरी. मतलब आपने जहाँ पे डाटा को स्टोर करके रखना है. देन प्रोसेस डिस्क्रिप्शन कि आपने अपनी प्रोसेस की डिस्क्रिप्शन कहाँ पे देनी है, उसको कैसे बनाना है, टेबुलर फॉर्म में बनाना है या फाइल्स में बनाना है. मीन्स दीज आर ऑल द लॉजिकल सिस्टम डिज़ाइंस. व्हेन यू थिंक नाउ दिस इज़ अ फिजिकल सिस्टम डिज़ाइन व्हेन यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट. क्लियर द डिफरेंस बिटवीन लॉजिकल एंड फिजिकल डिज़ाइन. जब आपने एक्चुअल में बनाना शुरू कर दिया देन यू मेक द ER डायग्राम्स. ER diagram means entity relationship diagram in which you show the different relationships among different attributes. Clear? Different attributes are there. From a set of attributes we make an entity. So from that diagram your physical system will be very clarified. And normalization of database. You have studied this topic in RDBMS also. You normalize your data so that data redundancy can be removed. मीन्स रेपिटेशन ऑफ डेटा. रिडंडेंसी मीन्स रेपिटेशन, रेप्लिकेशन. अगर बार बार आपका वही डाटा रिपीट कर रहा है मीन्स इट विल इंक्रीज द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट. सो यू कैन रिड्यूस इट बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन ऑफ द प्रोसेस. देन यूजर इंटरफेस एंड द रिपोर्ट्स. यूजर इंटरफेस मीन्स you implement the languages, you use the languages to implement the system. Which the language you will use that the user is demanding. And next is the reports. Reports means the hard copy of the project that you have studied and you have implemented. So hard copy means that it will work like a manual for any user.
Clear? Now what is actually logical system design and the physical system design? When we design any system, when we go through this designing phase, we have to pay consideration on these topics: how our system should be implemented, which type of inputs should be used, which type of data we should use, means that all the consideration is paid on these data structures. Now the system design guidelines. Now what is the actual relationship between logical and physical design? The logical design defines the functions and features of the system. Note down this concept. What is actually the logical design? That defines the function, means actually only defining something that you are going to implement, and the relationship among its components. Clear? Now logical design done during the system analysis phase. When you analyze the system, then you make the logical design, that मतलब कि हमें ये बनाना है, हमने इसके थ्रू ऐसे ही करना है, तो आप उसकी एक रफ सी डायग्राम बना लेते हो. Then logical design includes output that must be produced by the system. Clear? Where you have to reach, you make that diagram. Then input needed by the system, which input should be there, you consider on that. Process that must be performed by the system. ऑब्वियस सी बात है कि आपको तीन चीज़ें ही देखनी है कि आपने इनपुट क्या देनी है, उसको कैसे प्रोसेस कराना है, तो आपकी आउटपुट क्या आनी चाहिए. सो ये तीन चीज़ें हैं जो आप लॉजिकल डिज़ाइन में कंसिडर करते हो कि व्हाट शुड बी द आउटपुट, व्हाट टाइप ऑफ इनपुट शुड बी देयर, एंड हाउ टू प्रोसेस दैट. एक्चुअली प्रोसेस दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड बाय द सिस्टम विदाउट रिगार्ड टू हाउ टास्क विल बी अकम्प्लिश्ड फिजिकली. क्लियर? ये वाली लाइन है, ये हम फिजिकल डिज़ाइन में देखते हैं. बाकी सारा कुछ दैट इज़ लॉजिकल डिज़ाइन. जब हम देख लेते हैं कि सिस्टम को बनाना कैसे है, कैसे बनेगा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फिजिकल डिज़ाइन. Clear the relationship between logical and physical. Logical design is the first step and physical design is the second step of system designing. Now next is the physical design of an information system is a plan for actual implementation of that system. जब हम किसी डिज़ाइनिंग फेज़ को आगे जाना शुरू करते हैं, हम उस पर काम करना शुरू कर देते हैं. व्हेन वी आर एक्चुअली इम्प्लीमेंटिंग द सिस्टम, एट दैट टाइम वी से दैट कि हम वो सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. सो दैट फेज़ इज़ कॉल्ड एज फिजिकली डिज़ाइन. The physical design is built on the system's logical design and describes a specific implementation. ऑब्वियस जी बात है, जो आपने लॉजिकल डिज़ाइन बनाया है, आपने उसी से ही गो थ्रू होके आगे फिजिकल डिज़ाइन को बनाना है. जो आपने लॉजिकल डिज़ाइन में डिज़ाइन किया था, अब आपने उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना है, आप उसी से गो थ्रू होते हो. सो द फिजिकल डिज़ाइन इज़ बिल्ट ऑन द सिस्टम्स लॉजिकल डिज़ाइन and describes a specific implementation of that logical design. Now, system design usually begins after completing system analysis phase. When you typically analyze a phase, आपने एनालाइज कर लिया कि आपके सिस्टम बनाने की कॉस्ट क्या होगी, बेनिफिट्स क्या होंगे, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, देन उसके बाद आप डिज़ाइनिंग शुरू करते हो कि आपका सिस्टम कैसे बनना है और हमने उसको बनाना है. नाउ the relationship between logical and physical design. Again, physical design, what it describes, एक्चुअली द इनपुट डिज़ाइन, आपकी इनपुट कहाँ से जानी है, कैसे देनी है, कौन सी टाइप की इनपुट होनी चाहिए, आपकी आउटपुट आपको किस मोड में मिलनी चाहिए, इंटरफेस डिज़ाइन आपका कैसा होना चाहिए, आपकी जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो कैसी होनी चाहिए, देन एक्चुअल प्रोसेस ऑफ एंटरिंग, वेरीफाइंग एंड स्टोरिंग डेटा, physical layout of data files and sorting procedures. I just again give you an example of ATM. Suppose you go to your ATM. अब आपके सामने जो स्क्रीन आती है, that is user interface. So somebody who designed that system has actually think of that कि आपकी वो स्क्रीन कैसी दिखनी चाहिए. So that is the interface design. आगे आपने इनपुट कहाँ पे देनी है, आपने अपना पिन कोड कहाँ पे देना है, आपने अपना एटीएम कहाँ पे इंसर्ट करना है, आपकी जो आउटपुट आती है वो कैसी दिखनी चाहिए स्क्रीन, कि आपने पैसे विड्रॉल करने हैं या क्या करना है, आपने क्या ऑपरेशन करना है, आपने स्टेटमेंट लेनी है नहीं लेनी है, मीन्स दैट आर ऑल कंसिडर इन आउटपुट डिज़ाइन. अगेन द रिपोर्ट डिज़ाइन इज़ देयर. रिपोर्ट मीन्स वी कैन टेक द एग्जांपल दैट जो आपकी ट्रांजेक्शन स्लिप निकलती है कि उस पर क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मैंशनड होना चाहिए जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे. सो मतलब आई जस्ट हैव गिवन यू एन एग्जांपल जहाँ पे आप नेचुरली जाते हो. जब हम कोई सिस्टम को डिज़ाइन करते हैं तो हम ये सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि हमने कैसी इनपुट देनी है, कैसी आउटपुट आनी चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ इंटरफेस शुड बी देयर, एंड जो हमने रिपोर्ट जनरेट करानी है वो कैसी होनी चाहिए और कैसे प्रोसेसिंग करानी है. द वन अगेन द मेन पार्ट, हमने डेटा कहाँ पे स्टोर करवाना है.
और कहाँ से रिट्रीव कराना है। ये अगेन अगेन हमारा एक पार्ट आ जाता है फिजिकल डिज़ाइन का कि हमने जो डेटा एंटर किया है वो कहाँ से वेरीफाई होगा। आई रिपीट दिस लाइन, एक्चुअल प्रोसेसेस ऑफ एंटरिंग, वेरीफाइंग एंड स्टोरिंग डेटा। हमने जो डेटा एंटर किया है वो वेरीफाई कहाँ से होगा और वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा। सो इस चीज़ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, दैट इज़ RDBMS, that is your relational database management system। आप टेबल्स बनाते हो क्वेरी के लिए कि आपने ये अकाउंट नंबर एंटर किया है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, वो कहाँ से चेक होगा, वो वही डेटाबेस से चेक होगा जो आपका एक्चुअली बना हुआ है, ऑलरेडी स्टोर्ड है। मीन्स दैट जब हमने कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है तो कहीं पे हमने डेटाबेस भी रखना है, तो हमने वो भी पार्ट अभी स्टडी करना है। हमने देखना है कि हमने डाटा स्टोर करने के लिए कौन से मेथड यूज़ करने हैं। So this is again the part of your detailed system design. Now, there are three main activities of system design phase. One is review system requirements. When you go through the design phase, you many time consider the requirements in feasibility study, also in requirement analysis, in feasibility study, cost benefit analysis। ये सारे स्टेप से जब आप होके आते हो तो आप बार बार रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हो, बट इन डिज़ाइनिंग फेज़ आपने एक बार फिर से रिक्वायरमेंट्स को चेक करना है कि यूज़र एक्चुअली में चाहता क्या है। क्लियर, दैट इज़ बिकम फैमिलियर विद द लॉजिकल डिज़ाइन, जो आपने लॉजिकल डिज़ाइन में बनाया है कि इनपुट कैसी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी आउटपुट कैसी होनी चाहिए, वो आपने एक बार फिर से उसके गो थ्रू होना ही होना है। नाउ नेक्स्ट इज़ अ डिज़ाइन द सिस्टम। नाउ सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए मैंने आपको पहले भी बता दिया कि हमने सबसे पहले कहाँ जाना है, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस। मीन्स कि यूज़र का इंटरफेस यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, यूज़र चाहता क्या है, उसकी स्क्रीन पे क्या क्या आना चाहिए, या अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसका प्रोडक्ट है वो दिखना कैसे चाहिए। सो दिस इज़ अ यूज़र इंटरफेस। Design an overall user interface including screen, commands, controls and features that enable user to interact with the application। आपको मैंने अभी एग्जांपल दी थी एटीएम की कि वो स्क्रीन पे क्या आता है, दैट इज़ यूज़र इंटरफेस। अब कोई भी जाके, कोई एजुकेटेड पीपल है चाहे नहीं है, वो उस स्क्रीन से देख के उसको आइडिया हो जाता है कि उसने कहाँ पे एंटर करना है। मींस कि आपका जो यूज़र इंटरफेस है वो ऐसा फ्रेंडली होना चाहिए कि कोई भी एनी बडी कैन एक्सेस। तो इन डिज़ाइनिंग फेज यू हैव टू कंसिडर दीज ऑल। नेक्स्ट इज़ द इनपुट प्रोसेसेस। आपने इनपुट जो देनी है उसकी वैलिडिटी चेक करानी है, उसका इंटरफेस देखना। डिटरमिन हाउ डेटा विल बी इनपुट टू द सिस्टम एंड डिज़ाइन नेसेसरी सोर्स डॉक्यूमेंट्स फॉर दैट। Again, input and output. Design the physical layout for each input and output formats and report screens and printed reports. Again, I have already told you that which type of report should be generated. Pay concentration on that also. Data validity को check करना है कि data कैसा होना चाहिए, किस way में display होना चाहिए। आगे again determine how data will be organized, stored, maintained, updated, accessed and used. Clear? Now the system architecture. Determine processing strategies and methods, client server interaction, network configuration and internet intranet interface issues also। मीन सिस्टम आर्किटेक्चर में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप आ जाएगा कि आपने कैसा सिस्टम, कहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ कोई मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, आपने नेटवर्क कैसा बनाया है, आपका इंटरनेट का कनेक्शन है नहीं है, आपको वहाँ से फैसिलिटी चाहिए नहीं चाहिए। मीन्स ये सारी कंसिड्रेशन है जो हम पे करते हैं वाइल डिज़ाइनिंग एनी सिस्टम। क्लियर हो रहा है आपको कि डिटेल्स डिज़ाइन है क्या एक्चुअली में। जब हम कोई सिस्टम बनाने लगते हैं हम पहले उसके बारे में सोचते हैं, उसकी रफ डायग्राम बनाते हैं, देन हम उसको आफ्टर दैट फिजिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। जब हम फिजिकली इम्प्लीमेंट करते हैं तो जो हमने लॉजिकली में देखा हुआ है, सारा कुछ सोचा हुआ है, वो हम सारा कुछ वो फेजेस से गो थ्रू होके आगे जाके उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे हम कंसंट्रेशन पे करते हैं वाइल डिज़ाइनिंग एनी सिस्टम और एनी प्रोडक्ट और एनी प्रोजेक्ट। नाउ प्रेजेंट द सिस्टम डिज़ाइन। क्रिएट द सिस्टम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट। आपने पढ़ा होगा ये, इन विच यू डिस्क्राइब व्हाट यू डिस्क्राइब इन दिस स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, द प्रपोज्ड सिस्टम डिज़ाइन, the anticipated benefits of the system and the estimated development and implementation cost। मीन्स आपने अभी ये भी तो कहीं पे रखना है कि आपने कितनी आपकी कॉस्ट लगी, कितना आपको बेनिफिट हो रहा है या आगे हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए भी हमने एक डॉक्यूमेंट बनाना है जो उसको डिज़ाइन करके रखेगा। नाउ नेक्स्ट इज द क्रूशियल फेजेस ऑफ SDLC लाइफ साइकिल इज सिस्टम एनालिसिस टू डिफाइन द न्यू सिस्टम रिक्वायरमेंट। अगर सिस्टम की कोई न्यू रिक्वायरमेंट आ जाती है तो उनको चेंज करना है, उनको कैसे चेंज करना है। द फेजेस डिस्कस्ड हेयर आर इंक्लूड, वन इज कंसेप्चुअल सिस्टम डिज़ाइन।
Next is physical system design. These are the phases from which we go through in system designs. Now one is the conceptual system design and second is the physical system design. Next is systems implementation and conversion, and next is operation and maintenance, and next the first is the conceptual system design. आप conceptual system design में क्या करोगे, कैसे काम करना है, I just tell you. इसमें हम देखेंगे सिस्टम का आर्किटेक्चर कि जहाँ पे हमने काम करना है हमें वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, हमने क्या क्या देखना है, उसके बाद हमने काम को करना शुरू करना है. लॉजिकल डिज़ाइन में तो हमने सारी डायग्राम्स बना ली, ER डायग्राम वो हमने बना ली, डाटा फ्लो डायग्राम बना ली, अब उसको हमने फॉलो करके अब एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट करनी है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी स्टार्ट द इम्प्लीमेंटेशन वी गो थ्रू द सिस्टम आर्किटेक्चर कि आपका सिस्टम आर्किटेक्चर है कैसा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द कंसेप्चुअल सिस्टम डिज़ाइन फेज a general framework is created for implementing user requirements. Now here we are implementing that all that we have already make in the diagram or we have designed, and solving the problems identified in the analysis phase. Now three main steps are there. One is evaluate design alternatives, second is prepare design specifications, and next is prepare the conceptual system design report. अब कंसेप्चुअल सिस्टम डिज़ाइन में हम ये 3 स्टेप्स से गो थ्रू होते हैं. वन इज़ द इवेल्यूएट डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स, मीन जो आपने डिज़ाइन बनाया है उसको एक बार इवेल्यूएट करके देखो कि क्या वो सही काम कर रहा है. नेक्स्ट इज़ प्रिपेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस, उस डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन बनाना है. देन प्रिपेयर द कंसेप्चुअल सिस्टम डिज़ाइन रिपोर्ट, लास्ट में हमने ये रिपोर्ट जनरेट कर देनी है कि हम ये सिस्टम से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं. First of all, when you did this system analysis, then we did the conceptual system design. तो हम अब यहाँ पे काम कर रहे हैं conceptual systems design में. इसमें हम 3 phases से जो होके जाते हैं. One is evaluation करनी, प्रिपेयर करना डिज़ाइन स्पेसिफिकेशंस को, एंड डिज़ाइन रिपोर्ट को प्रिपेयर करना. ये कंसेप्ट सिस्टम एनालिसिस हमने पहले स्टडी कर लिया है. ये हमारे आज डिज़ाइनिंग के 4 स्टेप्स हैं जो हम डिज़ाइनिंग में पढ़ रहे हैं. दैट इज़ कंसेप्चुअल सिस्टम डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड कन्वर्जन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. तो कंसेप्चुअल सिस्टम डिज़ाइन में हम क्या देख रहे हैं. वन इज़ द इवेल्यूएशन करना डिज़ाइनिंग की, प्रिपेयर करना उसकी स्पेसिफिकेशंस को, एंड प्रिपेयर करना डिज़ाइनिंग रिपोर्ट्स को. So these are the 3 phases from which we go through in conceptual system design. Now first we go through from this evaluate design alternative. अब इसमें क्या हम देखते हैं और prepare design specification में क्या देखते हैं, that is prepare design specifications. Once a design has been selected, the object team develops the conceptual design specification for the following elements. Number 1 is output, because output is what goes to the user and the system must be designed to meet user needs. Is it clear कि हमने आउटपुट कैसी दिखानी है, हमारी यूज़र इंटरफेस कैसे होना चाहिए. सबसे पहले हम ये डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन को प्रिपेयर करते हैं. जब एक बार हमने कंसेप्चुअल डिज़ाइन में अपना देख लिया कि हमने जो डिज़ाइन बनाया है वो ठीक काम कर रहा है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि डेटा स्टोरेज, हमने डेटा को स्टोर कहाँ करना है. हाउ विल डेटा बी स्टोर टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड आउटपुट. मतलब मेन कंसिडरेशन तो यही होनी चाहिए ना कि जो आउटपुट आ रही है वो यूज़र के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करती हो. तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करना है तो हमने कहीं पे डाटा को भी तो स्टोर करना है ना. तो अगेन इनपुट, अब इनपुट किस टाइप की होनी चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ डेटा मस्ट बी एंटर टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड आउटपुट, ताकि जो आपकी आउटपुट है वो सही आ सके. क्लियर. सो दीज आर द मेन प्रिपेयर डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो हम डिज़ाइनिंग में जाते हैं. मैंने पहले भी कहा था कि हम 3 चीज़ों पे ही कंसंट्रेशन पे करते हैं. वन इज़ इनपुट, वन इज़ आउटपुट एंड वन इज़ द प्रोसेसिंग, जहाँ पे आपका डाटा स्टोर होएगा, प्रोसेस होएगा, रिट्रीव होएगा, जहाँ से आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स होंगी. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग प्रोसीजर्स एंड ऑपरेशंस. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि प्रोसेसिंग भी एक पार्ट है जहाँ से हमने जाना है इन डिज़ाइनिंग फेज. प्रोसेसिंग में क्या होगा, हाउ विल डेटा बी प्रोसेस्ड एंड इन व्हाट सीक्वेंस टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड आउटपुट. वो किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होना चाहिए ताकि रिक्वायर्ड आउटपुट जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो यूज़र को मिल सके. नाउ प्रिपेयर कंसेप्चुअल सिस्टम डिज़ाइन रिपोर्ट्स. अब इसमें क्या होएगा, प्रिपेयर द कंसेप्चुअल सिस्टम डिज़ाइन रिपोर्ट इज़ प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ कंसेप्चुअल डिज़ाइन फेज टू गाइड फिजिकल सिस्टम डिज़ाइन एक्टिविटीज़. क्या आपने फिजिकली सिस्टम को कैसे बनाया है. कम्युनिकेट हाउ मैनेजमेंट एंड यूज़र इंफॉर्मेशन नीड्स विल बी मेट,
कि आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपकी मैनेजमेंट की, मीन्स जिसने वो सिस्टम बनाया है और यूज़र की नीड्स को फुलफिल हो रही हैं या नहीं। हेल्प द स्टीयरिंग कमेटी एक्सेस सिस्टम फिजिबिलिटी को भी चेक करना है। नाउ नेक्स्ट इज द फिजिकल सिस्टम डिज़ाइन। अब हमने कंसेप्चुअली सारा कुछ देख लिया कि ये ऐसे होगा, हमने इनपुट कहाँ से देनी है, आउटपुट कहाँ से देनी है। तो जब हम फिजिकली उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमने कहाँ पे जाना है। अगेन ब्लॉक डायग्राम इज देयर, सिस्टम एनालिसिस, कंसेप्चुअल डिज़ाइन हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट इज आउटपुट डिज़ाइन, फाइल एंड डेटाबेस डिज़ाइन, इनपुट डिज़ाइन, प्रोग्राम डिज़ाइन, प्रोसीजर डिज़ाइन एंड कंट्रोल डिज़ाइन। These are the main part of your physical system design. One is output design, हमने आउटपुट को डिज़ाइन करना है कि हमारी आउटपुट दिखनी कैसे चाहिए, हमने फाइल और डेटाबेस कहाँ पे स्टोर करना है, कौन सा डेटाबेस यूज़ करना है, इनपुट डिज़ाइन कैसी करनी है, प्रोग्राम को कैसे डिज़ाइन करना है, प्रोसीजर और डिज़ाइंस कौन से यूज़ करने हैं एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन सी प्रोवाइड करनी है। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ योर फिजिकल सिस्टम डिज़ाइन। इज़ इट क्लियर? हमने एनालिसिस कर लिया, हमने कंसेप्चुअल सिस्टम डिज़ाइन बना लिया। अब फिजिकल डिज़ाइन में हमने ये सारा कुछ करके एक सिस्टम को बनाना है। नाउ आउटपुट डिज़ाइन। आउटपुट डिज़ाइन में हम एक्चुअली में क्या करते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटपुट डिज़ाइन इज़ टू डिटर्मिन द नेचर, फॉर्मेट, कंटेंट एंड टाइमिंग ऑफ प्रिंटेड रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट्स एंड स्क्रीन डिस्प्लेज। मीन्स आपकी एक्चुअल आउटपुट जो यूज़र चाहता है वो कैसी आनी चाहिए, उसमें आपने क्या क्या कंसिडर करना है। दैट इज़ योर फॉर्मेट्स, योर कंटेंट्स, टाइम्स, आपकी रिपोर्ट्स कब जनरेट होनी चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एंड आपकी स्क्रीन डिस्प्लेस कैसी होनी चाहिए। मतलब दीज आर द मेन पार्ट ऑफ योर आउटपुट डिज़ाइन। नाउ अगेन रिक्वायर्स कॉपरेशन बिटवीन यूज़र एंड डिज़ाइनर। ऑब्वियसली बात है कि अगर आपने कोई सिस्टम डिज़ाइन करना है, जो यूज़र चाहता है आपको उसके साथ बार बार इंटरेक्ट करना है, तो वो आपकी कॉपरेशन आपस में होनी चाहिए कि अगर आपने कोई सिस्टम डिज़ाइन किया है, यूज़र क्या डिमांड कर रहा है और डिज़ाइनिंग उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। नेक्स्ट इज़ important design consideration include use of the output, who will use it and why। हमने ये सारे टॉपिक्स को कंसिडर करना है कि अगर जो आउटपुट आ रही है, who will use and why it will be used, when it is needed, what decision will it facilitate। next is output medium। output medium कैसा होना चाहिए। इट कैन बी ए पेपर, इट कैन बी ए स्क्रीन, वॉइस रिस्पॉन्स भी हो सकता है, कोई डिस्क भी हो सकती है, माइक्रोफिल्म भी हो सकती है और एनी अदर ऑल्सो कैन बी यूज, डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। अगर आपके पास फाइनेंस है तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी आउटपुट का मीडियम यूज़ कर सकते हो। आउटपुट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, शुड सेलेक्ट द फॉर्मेट दैट क्लियरली कन्वे द मोस्ट इन्फॉर्मेशन। आपकी ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए कि आपके छोटे से फॉर्म में ही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन आप डिस्प्ले कर पाओ। इट कैन बी टेबल, नैरेटिव और ग्राफिक्स, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज प्री प्रिंटेड, मीन्स शुड पेपर आउटपुट बी ऑन प्री प्रिंटेड फॉर्म एंड और टर्न अराउंड डॉक्यूमेंट भी कोई हो सकता है। लोकेशन कौन सी होनी चाहिए, वेयर इज़ द आउटपुट टू बी सेंड, आपको कहाँ पे सेंड करनी है आउटपुट। एक्सेस कौन सी होनी चाहिए, हु शुड बी एबल टू एक्सेस हार्ड कॉपी एंड स्क्रीन आउटपुट। कोई ऑथोराइजेशन तो हम प्रोवाइड करेंगे ही, ठीक है ना। ये सारे कंसेप्ट हैं जो हम कंसिडर करते हैं कि आपकी आउटपुट में कैसी आनी चाहिए। डिटेल्स क्या, डिटेल में क्या क्या डिस्प्ले होना चाहिए, आपकी जो आउटपुट आती है जो यूज़र की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ फाइल एंड डेटाबेस डिज़ाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फिजिकल डिटेल डिज़ाइन। कि आपकी फाइल्स हैं या डाटाबेस है, आपने जो डिज़ाइन बनाया है वो कहाँ पे स्टोर करना है, कौन सा फाइल फॉर्मेट यूज़ करना है, डिपेंड्स हेयर। नाउ file and database design. Various company segments need to store data in compatible formats so that data can be shared across units। मतलब हमने यहाँ पे डाटा रखना है ताकि उसको सारी यूनिट्स में यूज़ किया जा सके, इंस्टेड कि हम सबको इंडिविजुअली डेटा प्रोवाइड करें, कि एक सेंट्रलाइज्ड हब बना दें कोई जहाँ पे हम सारा डेटा रखें और वहाँ से रिट्रीव हो सके। इस चीज़ के लिए हम क्लाइंट सर्वर टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं और मेनी टेक्नोलॉजीज आर ऑलवेज देयर। इंपॉर्टेंट फाइल एंड डेटाबेस डिज़ाइन कंसिडरेशन इंक्लूड स्टोरेज मीडियम, आपका डेटा स्टोरेज कहाँ होना चाहिए, दैट इज़ हार्ड ड्राइव, डिस्क, जैसे कि CD, टेप और पेपर कहाँ पे आप स्टोर करते हो। प्रोसेसिंग का मोड कौन सा होना चाहिए, मैनुअली, बैच और रियल टाइम कौन सा मोड यूज़ करते हो। मेंटेनेंस, उसकी मेंटेनेंस कैसे करोगे, व्हाट प्रोसीजर आर नीडेड टू बी इफेक्टिवली मेंटेन द डेटा।
साइज, डेटा का साइज क्या होना चाहिए, हाउ मैनी रिकॉर्ड्स एंड हाउ बिग आर दे, हाउ फास्ट आर they expected to grow, means these are the all topics that we have to consider while designing any system. storage medium, processing mode, maintenance उसकी कैसी करनी है, उसका साइज़ कैसे होना चाहिए, अब डेटा को हमने एक्चुअली में रखना कहाँ है वो भी तो हमने देखना है. देन डेटा कैन बी स्टोर्ड इन फाइल्स और डेटाबेस सिस्टम कैन बी यूज्ड. database management system can also be used. Now what is database management system? This is DBMS, that is a collection of records in which each record is a collection of different fields. I just tell you, आप तो या तो फाइल्स में डेटा रख सकते हो या कोई डाटाबेस बना सकते हो. अब फाइल क्या है? इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड्स. Files are unrelated to each other except in the code of an application program. Data storage is built around the application that use the files. मीन्स आपने एक सिंपल फाइल बनाई है, कोई भी फाइल बना लिया आपने, उसमें आपने अपना डाटा रख लिया. अब उसमें से डाटा जब आपने रिट्रीव करना है तो